Hello student. So today we are presenting a lecture number 2 for class 11th A plus B and today's topic is law of chemical combinations. तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैलेंसी, केमिकल फार्मूला और बेसिक केमिस्ट्री और के बारे में डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बेसिकली व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल ये कॉम्बिनेशन. सो हाउ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स. सो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज 5 laws which were first proposed in 18th century and early of 19th to be followed by the chemical reactions. At that time these all laws were universally accepted by the scientists because each of these laws was supported by Dalton's atomic theory. So after some time there was a discovery of nuclear reactions, isotopes and complex biochemical reactions, organic molecules. Few of these laws have been found to be not true, but till date for some chemical reactions, simple reactions, these laws are very used. So first law today we are going to discuss is the law of conservation of mass. As you know, for any chemical reaction, अगर मैं कोई normal सी reaction भी लिखूँ CaO plus CO2, it will form carbon dioxide. Okay, in this chemical reaction basically what happens, according to this law, this is reactant and this is product. Means in all chemical and physical changes the total mass of the substance involved remain unchanged. Means total mass of the reactant will be equal to the total mass of product. So how we can validate it? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मोलिकुलर मास दैट इज 40 प्लस ऑक्सीजन इज 16 दैट इज 56 प्लस यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज कार्बन 12, ऑक्सीजन इज 16 और 12 दैट इज 44. So overall it is 56 plus 44 that is 100. अब देखिए प्रोडक्ट की तरफ CaCO3 that is CaCO3. Okay, Ca plus CO2 is equal to CaCO3. Sorry. So calcium carbonate, that is calcium is 40 plus carbon 12 plus oxygen is 16, 3 are 48. So on adding it will also comes 100. Means we can say that total mass of the reactant will be equal to the total mass of product. So this you can note the law of conservation of mass. So in all chemical reaction, it may be physical change as well as chemical change, the mass of the reactant will be equal to the total mass of product. Total mass of reactant will be equal to total mass of product. So before proceeding further, there is one more principle that is known as POAC, that is principle of atomic conservation. According to this, in any chemical reaction the total number of atoms of an element in reactant side must equal to the total number of atoms of the same element on the product side. So this principle of POAC is, we will use it in stoichiometric calculation after the mole concept. So this you can note it. And after the law of conservation of mass, this is the example by which we can understand the law of conservation of mass. As you all know, the matter neither be created nor be destroyed, and it is therefore often called law of indestructibility of matter. Means matter neither be created nor be destroyed. So this is our first law. So further we are moving to our second law, that is the law of definite proportion. So according to this law, make a heading and note down this law, that is a chemical compound wherever obtained and however prepared, it will contain the same element in a fixed ratio by weight or mass. Means suppose, note down this, suppose you have taken water. अब आप water कहीं से लीजिए, it might be a tap water, it might be a rain water, it might be a sea water, or it might be from any source you are getting water. So in all cases it will be H2O. In all cases it will be H2O. In this case there will be a ratio 2 hydrogen means 2, oxygen is 1, that is 16. In this compound also 2 ratio 16, in this compound also 2 ratio, that is 16. On simplifying it, it will also come 1 ratio 8, it will also come 1 ratio 8.
तो अब वाटर किसी भी सोर्स से लीजिए, केमिकल कंपाउंड नो मैटर it is taken, wherever obtained, however prepared, it will contain the same element. Means this water contain hydrogen and oxygen. So these hydrogen and oxygen will be in a fixed ratio by weight. Hydrogen, that is 2 hydrogen means 2, oxygen 16, 2 ratio 16 means 1 ratio 8. तो आप वाटर कहीं से लीजिए, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, 1 ratio 8 रहेगा. दैट विल बी डेफिनेट और फिक्स्ड. सो दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट, ये मतलब प्रोपोर्शन. सो मेक, इसको अपने हेडिंग में डाल लें और इसको नोट कर लें. सो दिस इज आवर सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनेट, ये मतलब प्रोपोर्शन, विच इज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1799. एंड द फर्स्ट दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज गिवन बाय लेवाइजर in 1774. Okay, now our third law is law of multiple proportion, which is very important for your exam point of view. So according to this law, when two elements combine to form more than one compound, okay, then the different weight of first element that combines with the fixed weight of second one bears a small whole number ratio to one another. देखो डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट ये लगेगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. इट इज़ क्वाइट कॉमन. सपोज मैंने लिया कार्बन, ओके, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे, सपोज CO2 बनाए, और ये क्या बना सकते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं. इन विच देखिए कार्बन इज 12, रेशियो ऑक्सीजन इज 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32. इसमें देखिए कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज दैट इज 16. तो जो ये डिफरेंट मास, देन द डिफरेंट वेट ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स वेट ऑफ दिस वन, यानी कि फिक्स वेट क्या है 12, जो डिफरेंट है दैट इज 32 एंड 16. तो ये जो डिफरेंट वेट है जो इस फिक्स वेट से कंबाइन कर रहा है, इट विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो. देखिए कैसे, दैट इज ऑक्सीजन 32 रेशियो 16, दैट इज 2 रेशियो 1. सो दिस इज सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है. इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5. जहाँ पर नाइट्रोजन का वेट देखिए 2 नाइट्रोजन है 28, 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28. ऑक्सीजन इज वेट 16, 16, 3 ऑक्सीजन है दैट इज 48, 2 ऑक्सीजन 32, 5 ऑक्सीजन 18, बिकॉज यू नो नाइट्रोजन इज 14, ऑक्सीजन इज 16. तो अकॉर्डिंग टू देयर आइटम्स हमने लिख लिया. अब यहाँ पर क्या है कि एक का वेट फिक्स लो, यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं, तो हमने नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया 28 C. तो जब यहाँ 28 था तो यहाँ कितना था 16 लिखा. अब यहाँ 14 है बट हमने कितना फिक्स किया हुआ है, मतलब 28. तो जब 14 का हमने डबल फिक्स किया हुआ है 28, तो 16 के साथ भी कितना लगेगा ऑक्सीजन 32. 14 में 16 था तो 28 में 32. सिमिलर यहाँ 28 ऑलरेडी था, 48 28 48 लिख दिया. यहाँ देखिए 14 के साथ 32 है तो यहाँ डबल किया 28, 32 के साथ भी 64. यहाँ 28 के साथ 80 था, यहाँ भी 28 के साथ 80 है. तो अब ये फिक्स हो गया, ये डिफरेंट हो गया. तो जो डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है फिक्स वेट के साथ वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा. देखिए 16, 32, 48, 64, 80 एंड इट विल बी 1 2 3 4 5. सो दिस इज वैलिडेशन ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो दिस इज आवर फोर्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. और इसका आपने 2 एग्जाम्पल से भी देख लिया. CO, आप CO2 ऐसे करिए 1:2 या ऐसे ये कर लीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. Okay, now today's last law, that is Gillus's law. Basically this law is only for gaseous reactions. तो जब कोई भी रिएक्शन गैसियस मीडियम में होगी तभी Gillus's law एप्लीकेबल होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट, द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर. मीन्स इफ द वॉल्यूम, ये आपको बहुत अच्छे से नोट करना है, इफ द वॉल्यूम शुड बी मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. Means if there are the condition of constant temperature and pressure or similar temperature and pressure, then the gases react in volumes. Means the volume of reacting gases are in the ratio of small whole number ratio. Means देखिए example, H2 gas react with Cl2 gas form 2HCl. इसका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो देखते हैं तो 1, इसका 1, इसका 2.
इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने इसका 20 ml लिया तो इसका भी 20 ml, तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा HCl इट विल बी 40 बिकॉज इसके 1 वॉल्यूम से इसका 2 वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, तो इसके 20 ml से इसका कितना फॉर्म होगा, 40 ml होगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देखिए इसमें अगर स्टोइकियोमेट्री रेशियो देखा 1:3:2। अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज यू हैव 90 ml ऑफ नाइट्रोजन एंड 90 ml ऑफ हाइड्रोजन, तो इनका रेशियो कितना फॉर्म होगा। ठीक है, बेसिकली एक यहाँ से एक कंसेप्ट भी निकल के आता है, उसको हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस। कि सपोज मैं देख रहा हूँ, देखो सपोज इसका 90 ml था, तो इसका जब 1 वॉल्यूम था तो इसका 3 वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, तो जब इसका 90 ml है तो इसका कितना चाहिए होगा, 270 ml चाहिए होगा। बट एक्चुअली हमारे पास प्रेजेंट ये कितना है, केवल 90 है। मीन्स ये तो लेस अमाउंट में, मीन्स इट इज़ अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इट विल बी ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो क्या हो जाएगा, मतलब कंज्यूम हो जाएगा। अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से देखें, तो इसके लिए हम लोग अपनी अप्रोच को रिवर्स करते हैं। मीन्स अगर इसका 3 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम, मीन्स अगर हम इसका 90 ml ले लें तो इसका कितना लेना पड़ेगा, 1/3। 3 के लिए 1/3, 3 के लिए 1 चाहिए, तो 90 के लिए कितना चाहिए होगा, दैट इज़ 30 ml। तो इसका 1 से 2 बन रहा है, तो 30 से कितना बनेगा, 60 ml। तो इनके रेशियो क्या आ जाएंगे, 30 ml, 90 ml है आपका, मतलब 60 ml। तो यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। उसको हम लोग नेक्स्ट आगे के वीडियोस में करेंगे डिस्कस। टिल देन आप इन जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमने किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट ये मतलब प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल ये मतलब प्रोपोर्शन, एंड आपका मतलब ये मतलब गेलुसिक्स लॉ। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इन लॉज को नोट कर लें एंड मेकअप प्रॉपर नोट डेट वाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।